अभी 7 मिनट बाद होगी। 7 मिनट बाद क्या होगा। गरम लग रही है तेरे हिसाब में तो गरम है। ठंडी कर जल्दी से। हाँ तो पहले ना एक मिनट मेरा भी ले लो। हाँ वो पढ़ा रही होंगी और तू चाय में लगी हुई होगी। ये बढ़िया है इसमें देख देख के सबक लिखते रहो पढ़ते रहो। एक बात में तो अपनी बेटी के लिए अपनी भैंस भी वो बेची थी गाय और फिर मिला के गाँव में मतलब पर अभी तो हमारी हेल्थ पे क्लासेस चलेगी वुमेन। वो तो बात सही है लेकिन मतलब मैं ये कह रही हूँ मैंने कहा था अब इसमें डाल के
Good morning, everyone. I welcome you all to this session organized by RCD on the importance of mental health. Today, we have amongst us Ms. Farheen Naz. I will brief about her. As born and brought up in Shahjahanabad, known as Old Delhi or Delhi 6, to the outside world, Ms. Farheen, as an educationist, social activist, nature lover, and change maker, has been a great asset to the organizations she has worked with. Having a master's degree in education, Ms. Farheen Naz aspires to pursue a PhD in human rights,
peace, education, and to work for the improvement of education standards. She has an experience of over 10 years in her bucket working in the education field as an education administrator and has served at many organizations of repute. She is familiar with many languages such as English, Hindi, Punjabi, Urdu, and Arabic. She has joined the Raki Smart Center as project manager in 2018. She was also the member of Delhi Youth Welfare Association. She has worked with multiple organizations and has been a part of welfare societies also. Ma'am has started a new initiative with the name We the Change. It is a wonderful opportunity for all of us to hear from her. Now I would like to request ma'am to kindly continue with the session and tell us more about the initiative. Thank you so much, Simranju. Good morning, everyone, and thank you, RCD, for giving me this opportunity to join this session and lead it with you all. It has been a great journey with RCD since last 2.5 years, knowing Jasleen ma'am and the team and the wonderful work that RCD is doing. So first of all, I congratulate all of you, the team RCD, for contributing wonderfully to the society. Today, we have gathered here to talk about mental health. Before we start with mental health, let me tell you a brief summary about the initiative that I have just started, which is called We the Change. We the Change is going to be a platform to bring awareness to millennials. It's important for us to come together on a unanimous platform to talk about what is happening right and what is wrong with us and our society. What is there that needs to be changed and what is there that needs to be corrected. I have just started and I want you all to be a part of this journey. When we come together, we get united. And when united we stand, we make wonders. I believe that. So with this positive note, let's start our topic for the day, mental health. I hope my voice is clear for everyone. Yes, ma'am. Great. Yes, ma'am. Great. Yes, ma'am. Wonderful. So we'll talk about mental health today. I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Great. So when we talk about mental health, it's not at all about कि हम किसी को पागल कह रहे हैं. Mental health कोई बीमारी नहीं है. Mental health एक कंडीशन है. जैसे किसी को बुखार आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही. किसी को जुकाम हो जाता है, बस वैसे ही. जो राइट ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है. ये कोई प्रोलॉन्ग इलनेस हो सकती है, लेकिन किसी की सपोर्ट से जल्दी ठीक भी हो सकती है. इसे पागलपन कहना ठीक नहीं होगा. और ये ऐसा क्यों है, हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे. 10th October every year is recognized as World Mental Health Day by World Health Organization. आपको पता है World Health Organization क्या है? क्या कोई बता सकता है? पिछले 6 से 8 महीनों में आपने बहुत सुना होगा WHO के बारे में. International body about health. Right.
This is an international body that recognizes health issues across the world for all countries, which sets patterns and levels and conditions to recognize health conditions across the globe. During COVID-19 pandemic, आप बार बार देख रहे होंगे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए इस 7-8 महीनों के दरमियान में. तो दिस इज एन इंटरनेशनल बॉडी जिसने रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे on 10th October everywhere. Just like we celebrate Mother's Day, Father's Day, these are all international days. इसी तरीके से mental health day recognize किया गया. Why do we recognize such days? कई बार आप लोग कहते हैं ना कि मदर्स डे तो रोज है, माँ के लिए प्यार तो रोज है, तो उसको एक दिन फिक्स क्यों किया जाता है? तो why do we fix one specific day? Anyone? To talk about that issue on that particular day. Absolutely. To make people aware about the issue. हम रोजाना बात कर सकते हैं, लेकिन हम रोजाना हर चीज के बारे में बात नहीं कर सकते. इसीलिए हमने ये डेज फिक्स किए हैं ताकि हम अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकें उन कंडीशंस को लेकर जो जरूरी है. तो इस साल एक थीम के साथ इस मेंटल हेल्थ डे को मनाया जा रहा है, विच इज मेंटल हेल्थ फॉर ऑल. और ये क्यों चुना होगा? इस साल मेंटल हेल्थ फॉर ऑल क्यों चुना? Because every section of society, be young or middle-aged or our elders, all are suffering from mental health issues. Elders are suffering loneliness because their children are doing jobs far away from them, and youngs are suffering from joblessness or many other health issues like. For that purpose only, we have choose mental health for all. Well explained, Risha. और इससे भी इम्पोर्टेंट एक और चीज है. देखिए, आसपास हमारे तो परेशानियां चलती रहती हैं, लेकिन हमारे पास इस साल एक अलग परेशानी आई ना, कोविड-19. यस मैम. जिसने हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत एडवर्सली इफेक्ट किया है, राइट? हम सब लोग परेशान हैं, और ये जो परेशानी है घर पे एकदम से बैठ जाने की, हम बाहर नहीं जा सकते, हम घूम नहीं सकते, हम आज भी बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकते. It's such a suffocating environment, such a frustrating environment that we have been living in for the past 7-8 months. And this has brought us to a level जहाँ पर हम सभी कहीं ना कहीं mentally एक setback में हैं. तो इसीलिए इस साल mental health for all टाइटल रखा गया है, डेडिकेट किया गया है कि हम बात करेंगे इस दिन सबकी मेंटल हेल्थ की, सिर्फ उन लोगों की नहीं जो डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो. हम सभी लोगों को जरूरत है मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने की. सो व्हेन वी से कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी है, तो हम एक लिटरल डेफिनेशन पे बात करते हैं मेंटल हेल्थ की. Mental health includes our emotional, psychological and social well-being. हम जैसा फील करते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हमारे आसपास क्या है, अच्छा है, बुरा है, ये तमाम चीजें हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं. It affects how we think, feel and act. हम खुश होंगे तो हम खुश मिजाजी से बात करेंगे, हम नाराज होंगे तो हम दूसरों का भी मूड ऑफ कर बैठेंगे. जो हमारे पास होता है हम वही देते हैं. It also helps determine how we handle stress related to others and make choices. कुछ लोग अंदर से कितने भी फ्रस्ट्रेटेड क्यों ना हो, लेकिन उसे बाहर नहीं आने देते. कभी देखे हैं ऐसे लोग? आप कितने भी परेशान हो, लेकिन सामने वालों को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं. So mental health is important at every stage of life, from childhood to adolescence to adulthood. कुछ बच्चों को देखा होगा बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं.
पैर पटकते हैं, गुस्सा करते हैं, चीजें तोड़ते हैं, दूसरे बच्चों को मारते हैं। आपको लगता है ये नॉर्मल है? नो मैम। पेरेंट्स ये कह के छूट जाते हैं बच्चा है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। हम ये कोशिश ही नहीं करते कि कहीं उसको कोई मेंटल इशू तो नहीं है। और जब मैं मेंटल इशू की बात करती हूँ तो मैं पागलपन की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। जब मैं मेंटल इशू की बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑन अ पर्सनालिटी। तो आज हम कवर करेंगे अबाउट मेंटल हेल्थ, promoting mental health, encouraging awareness, prioritizing mental health, and psychological treatment. And psychiatrist का मतलब पागलों का डॉक्टर नहीं होता। So, सबसे पहली बात हम यही नोट कर लें कि जब हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्लिनिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, that does not mean at all that we're talking about an asylum. So let's talk about mental health. I would request all of you to be participative, क्योंकि अगर सिर्फ मैं बोलूंगी और आप लोग अपने विचार नहीं रखेंगे तो हम सिर्फ वन वे, मैं सिर्फ प्रवचन दे रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं और हम सुनेंगे और चले जाएंगे। लेकिन आज हम लोग यहाँ जब इकट्ठा हुए हैं तो हम यहाँ पर एक दूसरे से बात करने के लिए, डिस्कशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे अंदर जो है उसे बाहर लाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हम सब एक हैं यहाँ पर। हम एक दूसरे के बारे में जजमेंट्स नहीं करेंगे, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे नहीं किसने क्या कह दिया, क्या उसे ऐसा कहना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। हम ओपनली एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे कि हम क्या फील करते हैं। ऑलराइट? ओके मैम। यस मैम। और मैं भी बताऊंगी कि मैंने कैसा फील किया। मेरी लाइफ में भी ऐसे इश्यूज आए, ऐसे लेवल्स आए, ऐसे इंस्टेंसेस आए, ऐसे मेमोरीज हैं जिससे मुझे भी ये इश्यूज आए और मैंने कैसे ओवरकम किया। तो आज हम सब यहाँ अपनी कहानी बताने बैठे हैं। मैं अपनी बताऊंगी और आप अपनी बताइएगा। ऑलराइट? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Great. All right. Perfect. यस मैम। So being mentally healthy does not just mean that you don't have a mental health problem. आप खुश रहते हैं, आप काम पे जाते हैं, आप जॉब पे जाते हैं, आप पढ़ने जाते हैं, आप सेंटर जाते हैं, आप खुश। एक नॉर्मल हंसता खेलता इंसान देखने से लगता है इसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकती या इसे कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन ये गलत परसेप्शन है। हम सब कहीं ना कहीं थोड़ी या बहुत मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरते हैं हर वक्त। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे डील करते हैं। सो जब ये सही बात हमें पता है कि हम सब के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो हमने उसे कैसे डील करना है, ये 3 मेजर हाईलाइट पॉइंट्स हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन मैंने ये 3 रखे हैं क्योंकि ये जिस्ट है। मेक द मोस्ट ऑफ योर पोटेंशियल। कमियां तो सबके पास है ना। किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास जॉब नहीं है तो किसी के पास फैमिली नहीं है, किसी के पास रिलेशंस हैं तो धोखे हैं, है ना। हम सबकी जिंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी we are living our life and that is why we are making the best potential of our lives. Cope with life. हम जिंदगी की इस जद्दोजहद में आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, हार नहीं मानते, थक के बैठ नहीं रहे, बैठ भी जाते हैं तो सांस लेकर फिर चल पड़ते हैं। This is the continuous process. We are dealing with our mental health problem with braveness, courageously, बहादुरी के साथ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को झेलते हुए, कोप अप करते हुए आगे बढ़ रही है। अपनों की जिंदगी में, चाहे वो फैमिली हो, वर्क प्लेस हो, कम्युनिटी हो, फ्रेंड्स हो, अपना रोल प्ले करते हुए चल रही है। फ्रेंड्स को जरूरत होती है, पहुंच जाते हैं।
घर में प्रॉब्लम हो रही है, खड़े हो जाते हैं। सोसाइटी में कुछ इश्यू हो गया, किसी के घर में खाना नहीं है, कोविड के टाइम पे मसला हो गया था, हम साथ हैं। अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखते हुए चल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता आज ऐसा कोई भी होगा इस सेशन में जो सिर्फ अपने बारे में सोचता होगा। हम अपने बारे में सोचते हैं और साथ में दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, राइट? कोई ऐसा है यहाँ पे जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है? No, ma'am. नो मैम। चाहे कोई एक ही हो ऐसा जिसके बारे में सोचते हो, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होता है। कोई भी इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच के नहीं जी सकता। हम सब जुड़े हुए हैं, हम एक इंस्टीट्यूशन है, एक यूनिट है, एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली, एज रिलेशंस। और जो ये साथ होता है ना, जो हमें ऐसे जोड़ के रखता है, यही इंपॉर्टेंट है। Some people call mental health emotional health or well-being. And it's just as important as good physical health. वर्जिश करो, जिम जाओ, वॉक पे जाओ, सैर पे निकलो, योगा करो, मेडिटेशन करो, बैडमिंटन खेल कर आते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल का मैच हो जाए। अपनी फिजिकल हेल्थ का जितना ख्याल रखते हैं, अच्छा खाना पीना, दूध पिया करो, अंडे खाओ और बाहर घूमो, दिल को सुकून दो, दिमाग को सुकून दो। जब हम ये सारी चीजों का ख्याल रखते हैं तो हमें एक चीज का और ख्याल रखना है, अपनी इमोशनल हेल्थ का। ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे किस चीज के गलत या सही होने पर कौन सा इमोशन टैप होता है, मैं क्या होने से गुस्सा फील करता हूँ और किस चीज से मैं नाराज हो जाती हूँ, क्या होने पर मुझे खुशी होती है और मैं झूम उठती हूँ। जब हम अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, our life starts changing. और ये सिर्फ साइकियाट्रिस्ट का काम नहीं है, हम सबका काम है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम नाराज, गुस्सा या डरे हुए होते हैं। और ये मोमेंट्स जो होते हैं, ये इमोशंस जो होते हैं, वो कुछ पल के लिए आते हैं और फिर गुजर जाते हैं। कोई भी इमोशन आपके साथ लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इट्स टू शेल पास, वक्त गुजर जाता है। और अगर कोई इमोशन आपके साथ लंबे वक्त के लिए रह रहा है तो जरूरत है उसे करेक्ट करने की, किसी एक्सपर्ट से राय लेने की। क्योंकि अगर वो इमोशन अटक गया तो अब ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा और ये हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। ट्रस्ट में, किसी छोटे बच्चे के साथ भी हो सकता है, किसी बूढ़े के साथ हो सकता है, किसी नौजवान के साथ हो सकता है, किसी मिडिल एज के साथ हो सकता है। हर एक एज में ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है और किया गया है। इसीलिए अपनी मेंटल हेल्थ को जरा भी दाव पे मत लगाइए, अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली लीजिए। नाउ, इससे पहले कि हम इस सेकंड फेज पे जाएं, मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि वो क्या इमोशंस हैं जो आपको जकड़े रहते हैं, जिनके आसपास आप रहते हैं, और खास तौर पे पिछले 7-8 महीनों में वो क्या चीजें हुई जिसे आपने बहुत ज्यादा महसूस किया। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना बहुत जल्दी। Overthinking, ma'am. Stress. Overthinking, stress. Happiness. Stress. Wow. Sayam said happiness. Okay. Stress, anxiety. Sorry. Online classes, ma'am. ऑनलाइन क्लासेस, ये स्ट्रेस है, अच्छा है, बुरा है, क्या है? I would like to know. मैम पीछा ही नहीं छोड़ती। ओके। पीछे ही नहीं छोड़ जाएगा। एंथुसियाज्म, ओके। किस, जब आप हैप्पीनेस कह रहे हैं सयम, एंथुसियाज्म कह रहे हैं, तो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? Actually, ma'am, there is something like perspective. राइट,
मैम हमारा जो प्रोस्पेक्टिव होता है ना, मैंने जिंदगी से एक ही बात सीखी है मैम, हर चीज को एक्सेप्ट कर लो। जो इंसान अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर सकता है ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इस दुनिया में। एब्सोल्युटली। तो मैम मुझे लगता है कि हैप्पी रहना चाहिए, चाहे क्या हो गया, अगर कुछ हो गया तो। हाँ, मर थोड़ा रहे हैं, मरेंगे तो देखेंगे, आज हार गए कल तो जीत जाएंगे। Wow, that's courageous and that's powerful. Sayam, thank you so much for sharing that. Being positive is an attitude, and we should all have that attitude. Thank you so much for sharing that, Sayam. Happy to have you. So, anyone else? Diksha? यस मैम। आपका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन जो आपको लगता हो कि ये मेरे साथ बहुत ज्यादा रहता है, बहुत जनरल है? ड्यूरिंग दिस पीरियड और ऑल ओवर माय लाइफ? इन जनरल अगर कोई कोविड टाइम स्पेसिफिक है तो वो, और अदरवाइज यू कैन शेयर एनीथिंग इन जनरल। व्हाट इज sorry ma'am. Yeah, please go ahead. Mainly I focus too much on smaller issues. Like? बहुत परेशान हो जाती हूँ, कोई चीज हो जाए तो कैसे होगा, एंड बस वही उसी चीज को थोड़े टाइम तक मैं सोचती रहती हूँ। So आपको एंजाइटी हो जाता है अगर कुछ हो जाता है आपके पास? हाँ, यस मैम, समटाइम्स। ओके, ठीक है। और anyone else who would like to share? Jasleen ma'am or Jaspreet ma'am? थोड़ा सा डिसिप्लिन के केस में है कि वो ज्यादा डिसिप्लिन अगर ना रहे तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। कोविड में भी ज्यादा हो गया बिकॉज काफी सारी लिमिटेशंस हैं, जो करना चाहते हो आप नहीं कर पाते हो। That's correct. And लगता है कि कोई बंदा सामने आ जाए तो मैं ओदी टंग तोड़ दूं। टंग तक ही मैं ठीक है, सर फोड़ दूं। Yes, so these emotions are very strong. When they come to us, we feel certain kind of emotions which are too strong. Maybe we are happy and we would like to share our happiness with someone, or when we are sad or angry, we just want to blurt it out to people who are around us, and sometimes we hamper our relations because of that. अगर हम नाराज हैं, गुस्सा हैं, abruptly हम अपने सामने हमारा बेशक कोई बेस्ट फ्रेंड बैठा है या पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं, we just blast them off. होता है ऐसा? Yes ma'am, and overthinking is main issue in my life. So this happens with all of us, and why we are here today is because to identify. हम सिर्फ रियलाइज ही कर लेंगे ना ये बात को कि ये इमोशन आ रहा है हमारे पास, ऐसा होना फील हो गया है, तो ये फीलिंग जैसे ही टैप कर लेंगे आप कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है एंड अभी मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना है, वो मोमेंट आप रियलाइज करते हैं और आप आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। दिस इज फर्स्ट मंत्र। The moment you realize your emotion, you'll be able to solve half of the problem. सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। Got my point? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Great. So let's move forward. Promoting mental health. Just like we are doing right now. Everyone is different. Every single person here is different. We may bounce back from a setback while someone else may feel weighted down by it for a longer time. कुछ लोग होते हैं कि अपने बुरे वक्त से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं, बुरी मेमोरीज हो, कोई मोमेंट हो जहां गलत हुआ हो, उससे बाहर आ जाते हैं, रोते नहीं रहते, बाहर निकल आते हैं, और कुछ लोग उस लम्हे, उस मोमेंट में अटक के रह जाते हैं। जैसे संयम है, उन्होंने कहा कि मोमेंट है, एक इमोशन है, आया और चला गया, सेटबैक्स के लिए रोते क्या रहना।
और यहीं पर देवलीना है और उन्होंने कहा कि वो एंजाइटी में अटक जाता है। तो हमारी डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं और हम अपने इमोशन से, अपने मोमेंट से, अपनी इवेंट्स ऑफ लाइफ से डिफरेंटली बिहेव करते हैं, डील करते हैं। एंड योर मेंटल हेल्थ डज नॉट ऑलवेज स्टे द सेम। आप हमेशा खुश नहीं रह सकते, आप हमेशा परेशान नहीं रह सकते। इट कैन चेंज एज सर्कमस्टांसेस चेंज एंड एज यू मूव थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ एंड वी ग्रो। जैसे हम गलतियां करते हैं, सीखते हैं, इसी तरीके से अगर हम अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दें तो हम उनसे सीखते भी हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न आउट ऑफ योर इमोशंस। So I am going to show you the celebrities who recovered depression and anxiety. ये वही सारे लोग हैं जो स्क्रीन्स पर बहुत खुश दिखते हैं, बहुत कामयाब, अमीर, लग्जरी से भरी है इनकी लाइफ। रॉक, एंजेलिना जोली, शाहरुख खान। किसके फेवरेट हैं? कोई भी शाहरुख खान की, कोई है ऐसा जो शाहरुख खान की एक भी मूवी मिस ना करे? नोबडी। कोई शाहरुख खान का फैन नहीं है हमारे पास? मैम रॉक। रॉक। रॉक ओके, अच्छा है एंजेलिना। रॉक अच्छा है। ओह, बेटर देन शाहरुख। ओके, सो वी हैव इंटरनेशनल फैन क्लब हियर। ग्रेट। व्हाट अबाउट दीस? वरुण धवन, दीपिका, रणदीप हुड्डा, ग्रेट एक्टर्स। अनुष्का शर्मा, हनी सिंह। हनी सिंह के बारे में सोचा होगा किसी ने कि वो भी डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज हो सकते हैं? Yes, लियाना। I know that. Yes. So, you know, why have I brought these pictures here? पैसा और सक्सेस हमेशा खुशियां नहीं ला सकता। एक आम इंसान और एक सेलिब्रिटी दोनों ही मेंटल हेल्थ का शिकार है। सभी लोगों को मसला होता है जिंदगी में, हम कैसे ओवरकम करते हैं ये जरूरी है। एक बार फिर देखिए इन तस्वीरों को। ये वही लोग हैं जिनको देख के लगता है कि इनके पास दुनिया की तमाम खुशियां होंगी, लेकिन ये तमाम लोग अपनी जिंदगी में एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझते हैं। करोड़ों की शादियां, लाखों के लहंगे, इंटरनेशनल नेशनल टूर्स, वर्ल्ड के बेस्ट क्यूजीन्स, आलीशान घर, a bungalow with a pool and a BMW parked outside, and yet they have all been struggling with mental illness. So let's talk about our mental illness. हमारी लाइफ में अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेंटल इलनेस की, तो आपको क्या लगता है कि आपको कभी मेंटल इलनेस हुई है? क्या आप इतने समय में, जो हम इतनी देर हमें हुई अभी बात करते हुए, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है हमें साथ में, क्या हमने ये आइडेंटिफाई किया कि क्या हमें किसी हेल्प की जरूरत है? क्या कोई ऐसा इमोशन है जो हमारी लाइफ में हमें बहुत तंग करता है? कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा मेमोरी है जो हमारे पूरी जिंदगी को इफेक्ट करता है? Yes, ma'am, from last 10 years. Who said that? Rishabh. ऋषभ। Okay. क्या आप बताना चाहेंगे? If even only if you are comfortable.
यस मैम। और मैम यस मैम पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस दूसरी होती हैं मैम। मैम अब मैम पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों पे अपने गोल्स थोपते हैं, वो बच्चों से नहीं पूछते कि आपको क्या बनना है। और जैसे लोग कहते हैं कि पेरेंट्स भगवान का रूप होते हैं, मैम ऐसा कुछ नहीं होता। पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द केसेस अपने बच्चे को जो वो करना चाहते हैं वो करने से रोकते हैं। बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा होता है, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा वो करे जो मतलब कि वो चाहते हैं। सोसाइटी में भी मैम और ऐसा है, जैसे कि सोसाइटी में भी आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो मतलब आपको मैम डिस्करेज करेंगे आपको। सो दैट मीन्स कि वो 3 इडियट वाले कपूर साहब सब जगह है। यस मैम। मैम वैसा वैसा मैम असलियत में होता है, मूवीज में तो है ही, लेकिन मैम असलियत में भी होता है ऐसा कि रियल लाइफ में मैम ज्यादा होती है मैम, सिचुएशन ज्यादा टफ होती है। मूवीज में तो कुछ भी मतलब पता नहीं होता देख के, जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है वो ज्यादा टफ होती है। मूवीज आर अ काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल। जो हमारी लाइफ में हो रहा होता है वो बस एक बहुत हल्के लेवल पे उसको एक दर्शा दिया जाता है, लेकिन जब आप कोई अच्छी मूवी देखते हैं तो आप उससे एक अच्छा लेसन लेके उठ सकते हैं लाइफ में। जो सपोर्ट आप ने 3 इडियट्स में देखा पेरेंट्स की तरफ से, या जो हुआ चेंजेस आए लाइफ में, कहीं ना कहीं हम अपनी जाती जिंदगी से उसे कनेक्ट कर पाते हैं, देख पाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होता है। मैम रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता मैम। जैसे रियल लाइफ में इतनी आसानी से पापा नहीं मान जाते। I do understand that. This has happened with me as well. I wanted to be a science student and my father said ke nahi, I have studied commerce and you have to study commerce, and I took commerce in my 11th standard and I screwed 5 years of my life क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट पसंद ही नहीं था। और मैंने 5 साल कॉमर्स पढ़ा, 2 साल स्कूल में पढ़ा और 3 साल कॉलेज में पढ़ा। मैम सारे पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते शायद। वेरी ट्रू। सब लोग तो एक जैसे हो ही नहीं सकते। यस मैम, क्योंकि मैंने भी एक दिन पहले ही सोचा था कि मैं कॉमर्स रखूंगा और अगले दिन मैंने कॉमर्स रखा था। मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला। That's what I mean. So maybe हम शायद समझा नहीं पाते। शायद उस वक्त मैं समझा सकती थी, लेकिन गलती मेरी है, मैंने नहीं समझाने की कोशिश करी। But I missed an opportunity for the rest of my life. Then I not wasted. I would say I learned one new skill, one new subject in those 5 years. लेकिन मुझे लगता है अगर मैं अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चुनती तो मुझे ज्यादा मजा आता और मैं उन 5 सालों का और ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकती। Isn't it? Yes ma'am. Right. Excuse me ma'am. Yes. मैम ये तो चलो बात होगी इंटरेस्ट की, जैसे आपने बताया इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, लेकिन मैम अगर जैसे काफी स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे उनको नहीं समझ आता कि क्या करना है, एंड आई थिंक कि सोसाइटी में ना एक ऐसा बना हुआ है कि व्हेन यू आर अ ग्रेजुएट उसके बाद मतलब आपकी लाइफ ऐसे हो जानी चाहिए कि अच्छा ये करना है, मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब कि आप बड़े समझदार हो गए हो, आपको पता है आपका फ्यूचर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैकमा का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, इतने बड़े वो बिजनेस मैन है, तो वो खुद बोलते हैं कि 28 तक की एज तक मुझे खुद नहीं समझ आया था कि मुझे क्या करना है। मैंने इतनी जॉब्स छोड़ी, इतना सब कुछ मतलब बेसिकली, और आज हमको सबको पता है वो किस पोजीशन पे है जैकमा। तो मतलब मेरे को ये होता है कि मतलब पेरेंट्स ना इस चीज को मतलब थोड़ा ये होता है हर किसी पेरेंट को, ऑब्वियसली मिडिल क्लास पेरेंट चाहता ही है कि बच्चा सेटल हो जाए, और वो अच्छी बात है। दे आर मतलब बेसिकली वो हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं, लेकिन जब बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, बिकॉज मैम आई थिंक सो कि हर किसी का मेंटल लेवल एक अलग अलग उसका वो होता है। तो जब समझ ही नहीं आ रहा है तो कंफ्यूजन बहुत है, क्योंकि ऑप्शंस आर एंडलेस। हमें +1 में लगता था कि बस 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से चूज कर लो, लेकिन अब जैसे अब डिजिटल वर्ल्ड कितना ज्यादा ओपन हो गया, आईटी इंडस्ट्री छोटे छोटे बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, राइट। तो अब जाके पता लगता है कि ऑप्शंस तो एंडलेस है। उस टाइम पे तो हमें कुछ पता ही नहीं था। तो प्रगति हम 10 साल 15 साल पीछे जाते हैं और हम देखते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड कितना एक्टिव था। यहाँ पर जरूरत आती है, महसूस होती है काउंसलर्स की, जो करियर के लिए काउंसिल करें, या वो अवेयरनेस की जो हमें आज सोशल मीडिया से मिल रही है। आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया, इंटरनेट, इसने हमारी जो एजुकेशन है या कोई भी किसी भी चीज के बारे में अगर हमें नॉलेज चाहिए तो उसे ये जस्ट ऑन अ टैप ऑफ अ माउस क्लिक वी आर एबल टू गेट दैट। यस मैम, आप सही कह रहे हो मैम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द गैप, जनरेशंस का गैप। और ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए
कि बहुत सारे हम लोग फैमिलीज में फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। हमारे पहले हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिश्तेदारों ने पहले शायद कभी पढ़ा ही नहीं इतने आगे तक, तो वो हमें वो सपोर्ट नहीं दे पाते शायद जो जरूरी होती है, हमें टाइमली वो गाइडेंस नहीं मिल पाता जिसकी हमें जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम पहले कुछ नहीं कर पाए तो हम आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, या हमने आज तक जैसे जिया हम आगे भी वैसे ही जिएंगे। चेंज तो कभी भी हो सकता है ना। इट्स ऑल अबाउट व्हेन यू रियलाइज इट। यस मैम। सो लेट्स इसी के बारे में हम बात करें, हाउ टू मेक अवेयरनेस अबाउट थिंग्स। जैसे आपने अभी कहा कि हमें सही गाइडेंस मिलता तो हम कुछ कर पाते, उसी तरीके से मेंटल हेल्थ के बारे में अगर हम आज अपने आप को अवेयर करते हैं तो हम खुद को और दूसरों को इसके बारे में बता सकते हैं। सो एनकरेजिंग अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट एनीथिंग। So there is a stigma attached to mental health problems. This means that people feel uncomfortable about them and don't talk about them much. Many people don't even feel comfortable talking about their feelings, but it's healthy to know and say how you are feeling. मैं उसे बता दूंगी तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? लोग सोचेंगे मैं शिकायत ही करती रहती हूँ, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, मस्त है, परिवार में प्रॉब्लम हो रही हो, घर में पैसा नहीं है, मगर इनको मजे चाहिए। आपका मेंटल हेल्थ अलग है दूसरों के मेंटल स्टेट से। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहते। एक ऐसा हंसता खेलता इंसान जो सबको जॉली मूड रखता है, अंदर से बहुत कुछ छुपा रहा होता है, वो भी जूझ रहा होता है। शायद कोई है नहीं ट्रस्ट वर्दी जिसके साथ हम शेयर कर सके चीजें, क्योंकि आजकल तो लोग हमसे बातें पूछते ही इसलिए ताकि आगे पहुंचा सके, राइट? सोशल मीडिया के जमाने में सब कुछ फेसबुक वॉल पे नजर आता है। हम जो दिखाना चाहते हैं, हम कितने अंदर बहादुरी से अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, उससे बिल्कुल उल्टा हमारे सोशल मीडिया पर होता है। और ये जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ एक्सप्रेस करें, क्योंकि आप हर एक को तो राजदार नहीं बना सकते अपनी जिंदगी में। तो इसलिए आइडेंटिफाई करना होता है कि हम अपने बारे में किससे शेयर करें। आस्किंग फॉर हेल्प इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर मैं किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दूं तो मैं कमजोर हूं, ये समझना छोड़ दीजिए। लेकिन किसी एक ऐसे इंसान को चुनिए, वो आपका काउंसलर हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपकी माँ हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, जिसे आप अपने मसलों को शेयर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। You get care out of people when you share. And अपने दिमाग को, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। ये जानना जरूरी है कि मैं पहले, मेरा जहनी सुकून पहले। If I'll be mentally fit, I'll make everyone mentally fit. हम दूसरों की मदद तभी कर सकते हैं जब हम खुद उस पोजीशन में हो। आप खुद 35 किलो के हैं, 70 किलो के बंदे को गड्ढे से कैसे निकालेंगे? कर सकते हैं ये? नो मैम। आपको पहले स्ट्रॉन्ग होना है, आपको फिट होना है, ताकि आप दूसरों को स्ट्रेंथ दे सकें। जब आप खुद हजारों परेशानियों से, मसलों से जूझ रहे हैं, आप दूसरे को इत्मीनान दे सकते हैं। शायद कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा तो नहीं। तो हाउ टू डू दिस? So I have shared certain tips here that will quickly check out. Staying active, eating well. Mark my words, eating well. अच्छा खाना बहुत important है. Add a lot of proteins in your diet. Eat healthy, juices, low calorie food. Go for a walk in the morning. Get up in the morning. Let me tell you, for almost 20 years of my life,
मैं हमेशा लेट उठती थी, क्योंकि मुझे आदत थी स्कूल टाइम से कि मैं सुबह 2-3 बजे तक पढ़ती रहती थी रात को। So, जब मैं सोती थी तो मैं जल्दी उठ ही नहीं पाती थी, एंड दैट रियली हैम्पर्ड द फ्लो ऑफ माय लाइफ। अनहेल्दी कंडीशंस में रहेंगे तो हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, और वो 15-20 साल एक तरफ, और मेरी जिंदगी का लास्ट 1 महीना एक तरफ। ऐसा क्या चेंज हो गया पिछले 1 महीने में? जिंदगी की ख्वाहिश थी कि सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें, टू ज्वाइन 5 AM क्लास। मौका नहीं मिला, लेकिन ये पैंडेमिक जो आई ना, इसने अपने साथ साथ बहुत सारे ऐसे चेंजेस लेकर आए जिससे जिंदगी में कुछ एडवर्सिटीज भी आए और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आए। और एक बहुत अच्छा तोहफा इस पैंडेमिक ने जो दिया वो ये कि हमने एक साथ अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताया, अपने फ्रेंड्स को दूर रहकर भी करीब रखा, एक दूसरे के बारे में जाना, अपनी कम्युनिटी के बारे में जाना, उनका ख्याल रखा, और सबसे पहले अपना ख्याल रखा, मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए। ये जो मैं है कि मुझे अपना ख्याल रखना है, जैसे आपने अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखा, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा। So in the last 1 month, I took care of my physical health and mental health. सुबह उठना, पार्क जाना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना, कीपिंग अ टैप ऑन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, सिर्फ खाने के लिहाज से नहीं, वर्कआउट के लिहाज से नहीं, लेकिन आप अपने दिमाग में किन इमोशंस को जगह दे रहे हैं उसके लिए। जो चीजें मुझे पहले प्रॉब्लम करते थे वो अब नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है कि वक्त के साथ गुजर जाएगा। सो हैविंग पॉजिटिव पीपल अराउंड रियली हेल्प्स। मैं पॉजिटिव तब सोच पाई जब मेरे पास ज्यादा तादाद में ऐसे लोग थे जो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे थे पॉजिटिवली। तो इसीलिए अपने सर्कल को एक बार देख लें, आपके आसपास कैसे लोग हैं। पहले मुझे सही होना है ना, तो पहले मैं अपना ख्याल करूंगी। तो मैंने सबसे पहले देखा कि मैंने किन लोगों के साथ रहना है, मैंने चूज किया पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, और इसलिए मैंने अपने एनवायरनमेंट के आसपास से उन तमाम लोगों से बात करना कुछ समय के लिए बंद कर दिया है जो मुझे नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। I stay in touch with people who make me happy and contented, with whom I can talk about my true feelings. Yes, this is very important. Take a break. आपको ब्रेक लेना है। मेरे लिए मेरा अपना मी टाइम, वीकेंड पर अपने साथ 2 घंटे बिताना, कोई अच्छा सा कोर्स स्टार्ट कर लेना जो मैं अपने अपग्रेडेशन के लिए कर रही हूँ। मॉर्निंग में 20 मिनट का मेडिटेशन जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ नेचर को सुनूं। जब मैं वॉक पर जाऊं तो गप्पे ना लगाने लगूं, वो मेरा वक्त है। अपने आप को रीस्ट्रेस करूं, अपना मी टाइम हो। आप में से कितने लोग मी टाइम फॉलो करते हैं? क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद अपने लिए कुछ वक्त निकालते हैं, बेशक वो महीने में 1 घंटा हो या हफ्ते में? प्लीज टेल मी। यस मैम, यस मैम, यस मैम। क्या करते हैं आप ऐसे? मेडिटेशन मैम। ओह वाह। और कोई? मैम मैं अकेले छत पे वॉक करता हूँ मैम। वाह, सॉलिट्यूड। और मैम सेवा। सेवा, गुरुद्वारे जाते हैं? नहीं मैम, एक्चुअली यहाँ शिमला में थोड़े गुरुद्वारे का मैं तो मैं मंदिरों में ही जाता हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, मंदिर, गुरुद्वारा, कोई भी रिलीजियस प्लेस जहाँ पर आप जाकर सेवा भाव कर सकते हैं। मैम बाहर घूमने के लिए। बाहर एज इन आउटिंग, ट्रैवलिंग? मैम नॉट एज एन आउटिंग बट एज ए मतलब ऐसे ही टहलने के लिए, बाजार के अंदर देखना क्या क्या चल रहा है आजकल मार्केट में। ओके, दैट मीन्स you go alone and yes observe, right? मैम। Okay, all right.
और बहुत सारे लोग हैं हमारे पास। I do आकांक्षा, daily walk for half an hour. वेरी नाइस। Spending time with nature, like Wonderful. watering the plants and observing the nature. Wonderful. I also take almost, daily. This is my ritual now. This is my personal ritual that I should get up in the morning and go for a walk. Spend at least 2 hours a day with me. खुद अपने लिए हमारे पास 24 घंटे हैं। अगर हम वो 2 घंटे, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट अपने लिए ले लेते हैं, उसी 24 घंटे में से जो हमारे हैं, तो कोई मसला नहीं है। हमारे लिए ये बेस्ट है कि हम अपने लिए वक्त निकालें। अपने डॉक्टर, बेसिक डॉक्टर हम खुद बन सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हम खुद अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख पाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत जरूर पड़ती है। लेकिन यस, जहां तक हम कोशिश कर पाए हम ऐसा कर सकते हैं। डू समथिंग यू आर गुड एट। What do you love doing? What activities can you lose yourself in? What did you love doing in the past? Enjoying yourself can help beat stress. Doing an activity you enjoy probably means you are good at it, and achieving something boosts your self-esteem. मुझे सोशल सर्विस में वॉलंटियर करना बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा ऐसे इनिशिएटिव्स की तलाश में रहती हूँ जहां पर मैं जाकर कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। आई फील गुड अबाउट इट। सैम ने कहा वो मंदिर जाकर सेवा करते हैं। मैम एक्चुअली हमारी एनजीओ भी है। आपकी एनजीओ भी है? वाओ, ग्रेट। सो जब हम किसी कॉज के साथ जुड़ जाते हैं, या मे बी मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, या मुझे स्विमिंग में बहुत मजा आता है, या मुझे बाइक राइडिंग में बहुत मजा आता है, बाइक उठाओ और निकल जाओ रोड पे, लॉन्ग ड्राइव करके वापस आ जाओ, या मुझे चांद तारे देखना बहुत पसंद है रात में, स्काई गेजिंग करना, एनीथिंग दैट मेक्स यू फील गुड, प्लीज डू इट। ट्रैवलिंग, yes, traveling, rejuvenating yourself by traveling. फ्री टाइम होता है तो अपने आप को फ्रेश करने के लिए आई मेक द ट्रैकिंग। Wow, do ask me next time you go. Okay ma'am. All right, these three are very very important. Accept who you are. कोई मुझे जाने इससे पहले मुझे अपने आप को जानना है। Spend time with yourself, knowing yourself. Ask for help. और हमेशा याद रखिएगा कि जब मैं हेल्प की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रही कि मेरा फ्रेंड मेरी हेल्प कर देगा या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। सिर्फ किसी से शेयर करना बच्चे जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपकी सही मायने में मदद कर रहा हो सकता है वो कर सके, लेकिन अगर उसे इतनी नॉलेज नहीं है कि वो आपको सही तरीके से हेल्प कर पाए तो आप और ज्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। इसीलिए जब हम हेल्प की बात करते हैं तो हम एक्सपर्ट हेल्प की बात कर रहे हैं। यू नो, साइकोलॉजी हैज लेयर्स एंड इट हैज मेनी स्ट्रीम्स। कोई इमोशनल साइकोलॉजी में डील करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में डील करता है, कोई चाइल्ड साइकोलॉजी में डील करता है। हम जिन इमोशन से जूझते हैं उसके लिए हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, इमोशनल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हमारी हेल्प नहीं कर सकता। मेरे मसले बड़े हैं तो कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा। आई एम अ मैच्योर्ड पर्सन। तो दवा किससे लेनी है, यूनानी लेंगे, एलोपैथिक लेंगे या होम्योपैथिक लेंगे, उसके लिए तो उस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। तो आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह की हेल्प चाहिए। योर फैमिली और फ्रेंड्स कैन ऑफर एन एयर, बट you need to identify the right person who could help you, and please look out for an expert help whenever you need one. Care for others, जैसे अभी हमने कहा वॉलंटियर करते हैं हम। So caring for others is often an important part of keeping up relationships with people close to you. It can even bring you closer together. वो लोग जिनके आप करीब हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं, you'll feel happy.
and people feel happy when they help unknown people, totally strangers. So it's up to us. How do we feel good? Before we move ahead psychological treatment की तरफ, मैं चाहूंगी कि आप सब लोग एक इंसाइट दें मुझे। अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। We'll go for another 10 minutes. मैम हर कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, और मैम हर कोई अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता कि आप की मेंटल इलनेस से गुजर रहे हो। मैम वेरी ट्रू, आइडेंटिफाई हर कोई नहीं कर सकता। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स मानती हूँ कि एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन काफी फ्री प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां पर आप इस तरह के ट्रीटमेंट्स को आप ले सकते हैं, और ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में। आप सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, फेसबुक पर आपको बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिलेंगे जो यूट्यूब पे चैनल है संदीप महेश्वरी, बड़ी yes, even my cousin only runs a psychological illness, mental illness के ऊपर बहुत बात करती हैं, and he has a channel Arijological, and I think youngsters are doing wonderful contribution in this field. Speak up. आप क्या फील करते हैं उसके बारे में बोलना बहुत जरूरी है। लोग क्या सोचते हैं, अगर मैं बोलूंगी कि मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिससे मैं जूझ रही हूँ, तो खानदान वाले क्या सोचेंगे, परिवार वाले क्या सोचेंगे, साइड में रखिए। हमें अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने हैं ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो। Yes. Ma'am, they do not give you the solution, they only give you the medicines. It happens with me. I think you need to get another counselor then. I'll connect you with one if you need. I can share the contact details of one person who may be of some help, and if any of you would like to connect, may connect with her, because मैंने ली है psychological help. I have taken sessions, mental illness sessions. I have been struggling with my own anxieties, depressions, problems, and been 4-5 months that I have taken the treatment, and I'm feeling good. I'm good. I'm back to my normal, and it's quite normal. जहाँ कोई चीज, कोई बात आपको तंग कर रही है, just go ahead. There is no shame sharing problems, but with the right person. So I'll keep the yes. Ma'am, actually, yes. One person at a time, please. मैम मैं ये पूछ रहा था, मतलब रिश्तेदारों में ऐसा होता है कि मतलब हमें पता होता है ये हमारे को हर्ट करेंगे, और वो हर्ट करने के बाद बिल्कुल सही मतलब बिहेव करते हैं कि मतलब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो ऐसे लोगों से मतलब कैसे डील करा जाए? देखिए, आप लोगों को तो चेंज नहीं कर सकते, जहां तक मैं समझती हूँ उनको चेंज करने में बहुत वक्त लगेगा। तो एक छोटा सा फंडा देती हूँ। परमेश्वर ने हमें 2 कान दिए, एक से सुनो, दूसरे से निकालो। कितना लेकर चलेंगे हम, और कितने लोगों की बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हम डिसाइड करेंगे, वो नहीं। तो उन्हें डिसाइड मत करने दीजिए, आप वो रखिए जो आपके काम का है, और जो नहीं चाहिए उसे निकाल दीजिए। सिंपल एज दैट। ओके। एक्सक्यूज मैम। यस मैम, जैसे आप बोल रहे हैं कि शेयर करना चाहिए मैम, बट आजकल ना कोई राइट पर्सन मिलता नहीं है, वो हजारों की तादाद में एक होता है। बिकॉज मैम, क्योंकि आजकल ऐसा टाइम है कि मतलब की बातें सब समझ लेते हैं, बात का मतलब कोई समझ ही नहीं पाता है। वाह, शायर है यार आप तो। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं समझने की बात का मतलब कोई समझ नहीं पाता। वेरी नाइस। यस, सो मैम एक्चुअली आई एम अ राइटर। देखा, सही पकड़ा मैंने। चलो भाई, जसलीन मैम, मुझे लोगों की बंदों की कदर है, मतलब समझ है। देखा। ओके, व्हाट्स योर नेम? मैम संयम भारद्वाज एंड पेन।
Sayam. Okay, I'm on another screen. That is why I'm not able to see your names. Okay, so Sayam, see, this has happened with me. For years, I thought कि I cannot share my things with anyone. लेकिन अंदर से निकालना होता है ना. So I started speaking to myself. Go to a room. Take it out. अंदर मत रहने दो. आपको लग रहा है आप किसी और से बात नहीं कर सकते, आप खुद से बात करें. And trust me, this is a wonderful practice. अगर जब तक आपको कोई नहीं मिल रहा जिससे आप शेयर कर पाए, you are your best friend. Share with yourself. एक्चुअली मैम फिर एक्चुअली ये होता था मेरे साथ. पहले मैं खुद से बातें करने लग जाता था, फिर घर वाले बोलते थे कि ये तो पागल हो गया है, साइकियाट्रिस्ट के पास ले चलो, ऐसा बोलते थे. तो बेटा सबके सामने बैठ के अकेले कमरे में मत जाओ ना. You may go to a park, sit in an isolated place and talk to yourself. अब मुझे पता है इतने बड़े बड़े घर नहीं हैं हम लोगों के कि हम अपने आप को एक अलग से रूम में जाकर बंद कर पाएं, लेकिन we can always find a corner for ourselves. मैम और भी उलझ जाते हैं अगर सेल्फ टॉक करने बैठे तो. एनालाइज करने के लिए नहीं कह रही हूँ, सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नहीं कह रही हूँ. अंदर जो भरा है ना, सिर्फ उसे निकाल दो. मैं ट्रीटमेंट नहीं बता रही हूँ, मैं तो सिर्फ एक टिप दे रही हूँ. अगर मसला ज्यादा है तो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, और ट्रीटमेंट को हेल्प कहिए, किसी की जरूरत है. ऐसा कोई स्ट्रेंजर, कोई थर्ड पर्सन जिसके साथ आप अपनी जिंदगी की वो बातें भी शेयर कर सके जो आप किसी से नहीं कर सकते. क्योंकि हमेशा जो एक एक्सपर्ट होता है, जो एक प्रैक्टिशनर होता है, उसका और आपके बीच का सबसे पहला अग्रीमेंट होता है कि वो आपकी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखेगा. आप उसका सब्जेक्ट होंगे, और जब हम एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो सब्जेक्ट्स अपने क्लाइंट्स के डिटेल्स को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते. इसलिए दे आर ट्रस्टफुल पर्सन, ट्रस्टवर्दी. जब तक आप राइट पर्सन से नहीं मिलते तब तक आप अपने फस को ईज आउट तो कर सकते हैं. These are tips and you'll find many on the internet. Choose the right ones that work for you. मैंने वो बताई जो मेरे लिए काम किए. आपको सेम मेडिसिन शायद सूट ना करे, तो ये आपको देखना होगा, लेकिन आइडेंटिफाई करना जरूरी है. So what psychological treatment? थेरेपी, साइकोथेरेपी, टॉकिंग थेरेपी. हम किसी से बात करते हैं और बात करने से हम अच्छा फील करते हैं. It involves talking about your thoughts with a professional, mark my words, professional, expert, who better understands your own thinking and behavior, understand and resolve your problems, recognize symptoms of mental illness in yourself, reduce your symptoms and change your behavior. गुस्सा आता है, जैसे ही गुस्सा आए आइडेंटिफाई करो, अब मुझे इस बात पे गुस्सा आने वाला है. चेंज द मूड, बात चेंज कर दो, मोमेंट चेंज कर दो, दिमाग में कोई और चीज ले आओ. किसी एक इंसान को देखकर बहुत गुस्सा आता है, उसकी कोई अच्छी बात याद कर लो, कोई अच्छा मोमेंट याद कर लो. हर इंसान के साथ हमारे अच्छे और बुरे दोनों वक्त के मोमेंट्स होते हैं. अगर किसी एक इंसान की कोई एक बात अटक गई जहन में और वो नहीं निकल गई, तो बेहतर ये होगा कि मैं उसकी कोई अच्छी बात याद कर लूं, ताकि उस बुरी याद का असर थोड़ा कम हो जाए. मिटने में वक्त लगेगा, लेकिन असर कम कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, दिस विल चेंज. This will change us, our mental levels. And लोग पागल कहेंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाओ? Why get psychological treatment? Depression, anxiety, addiction, eating disorders, नहीं खाने का मन करता, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, किसी की डेथ हो गई, बहुत क्लोज था, बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई, उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बहुत ऑब्सेसिव है किसी चीज को लेकर, अगर उस चीज से रिलेटेड कोई भी चीज न्यूज कुछ सामने आती है, आपके बिहेवियर्स चेंज हो जाते हैं. पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. ट्रीटमेंट इज नीडेड. आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इज इम्पोर्टेंट. कोई भी
फ्रेंड, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग, सिस्टर, ब्रदर्स, दे कैन बी देयर टू लिसन टू यू, लेकिन वो आपको एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दे सकते। अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो याद रखना है, यू फील कंफर्टेबल विद योर थेरेपिस्ट। मेरी थेरेपिस्ट हैं रुखसाना सलीम, सॉरी रुखसार सलीम, एंड रुखसार एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिशनर हैं जिन्होंने मुझे मेरे उस फेज से बाहर निकाला। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, आपको कोई भी थेरेपिस्ट, कोई भी एक्सपर्ट आपकी प्रॉब्लम से बाहर तब तक नहीं ला सकता जब तक आप खुद उससे बाहर ना आना चाहें। मैं चाहती थी बाहर आना, मैं चाहती थी बदलना, और मुझे हेल्प की जरूरत थी। मैंने देखा था भाई से बात करके, बहन से बात करके, दोस्तों से बात करके, रिश्तेदारों से बात करके, मॉम से बात करके, डैड के साथ शेयर करके, कुछ असर नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ था जो मैं उन सब के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, और एक अनजान के साथ शेयर किया। और ऐसा लगा जैसे एक अंधेरा कमरा था जिसमें मैं फंसी हुई थी, और रुखसार ने एक हाथ मेरा पकड़ के और मुझे उजाले में बाहर खींच लिया। एंड दिस इज ट्रूथ। मैं तैयार थी उससे बाहर आने के लिए, इसीलिए ये मुमकिन हुआ। आज मैं आपके सामने बैठकर मेंटल हेल्थ पर बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सभी मेंटल इलनेस से फारिग हो चुकी हूँ, नहीं, मेरे पास भी एंजाइटीज हैं, मेरे अपने सेट ऑफ डिप्रेशंस हैं, लेकिन मैं इस लेवल पर हूं कि मैं बात कर सकूं, मैं बता सकूं, अवेयरनेस फैला सकूं, एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग राइट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। यू नीड टू बी एक्टिव इन कंट्रीब्यूटिंग एंड बीइंग पार्ट ऑफ द थेरेपी। आप अपने थेरेपिस्ट को सब सही बताएं। अगर आप कुछ भी छुपाएंगे तो आपको दवाई ठीक नहीं मिलेगी, ट्रीटमेंट ठीक नहीं मिलेगा। It takes time for psychological treatments to work, but the effect lasts. कुछ वक्त लगता है, लेकिन एक बार आप उन हकीकतों से आमने सामने हो जाते हैं, रूबरू हो जाते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आपको चेंज महसूस होता है जो बहुत लंबे अरसे तक रहता है और या फिर जिंदगी भर। सो ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी एक्सपर्ट की राय लेते हैं, हेल्प लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपने सब बताना है, कुछ छुपाना नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। Have I made myself clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's already 12:10. I think I would need another 5-7 minutes. Shall we continue? Yes, ma'am. No problem at all. You may continue. It's a pleasure hearing to you. Thank you so much. So, सिर्फ 2 चीजें बाकी रह गई हैं और तीसरा गुड बाय। थर्ड लास्ट चीज है, सॉरी, मेरा एक सवाल था। हाँ जी। मेरे लिए कंफ्यूजन होगा, बट आपके लिए सवाल है शायद। जैसे कि किसी के दिमाग में बहुत सारे मुआवजे होते हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या ये जरूरी है कि उन चीजों को हम किसी से शेयर करें, या फिर उससे बेहतर हम कुछ ऐसा करें कि हम उस मुआवजों को, उस थॉट्स को अगर एक पन्ने पर उतार दे, तो वो क्या ज्यादा बेहतर तरीका नहीं है? एनीथिंग, देखिए, जो मेरे लिए वर्क किया जरूरी नहीं है आपके लिए भी वही करें। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप अपने थॉट्स को कागज पर उतार कर अच्छा महसूस करती हैं, प्लीज कीप डूइंग दैट। लेकिन किसी भी लेवल पर आपको लगता है कि ऐसा करने से मुझे एक टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन मुझे उसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, तो आप एक्सपर्ट के पास जरूर जाइए। जी, अगर ये हो, क्योंकि अब वो तरीका भी सही नहीं है, जैसे मैंने बोला कि
तख्ती पर आप उतार दें तो, पर उसके सवाल नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सवाल तो हमारे पास है, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं उसमें, और हमें जवाब कहाँ से दें। एग्जैक्टली, आपको जो जवाब चाहिए वो आपको एक स्पेशलिस्ट दे सकता है, और जरूरी नहीं कि वो 100 सवालों में से 100 का जवाब दे दे। अगर आपको 20 जवाब भी मिल जाते हैं तो आप सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि वो सवाल जिसका एक का भी जवाब आपको नहीं मिल रहा था, कुछ तो है जो आपके पास है। और हर सवाल का जवाब वक्त पे मिलता है, लेकिन वो वक्त लाना भी पड़ता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अपने मेंटल स्टेट को पहचानिए, और अगर आपको लगे कि जरूरत है बात करने की किसी एक्सपर्ट से, तो देर मत करिए, इंतजार मत करिए। आपको क्या लगता है, हम जो बोलते हैं कि अच्छा चलो ऐसा चल रहा है, जस्ट लेट इट बी, तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेट इट बी कहकर हम ऐसे बहुत सारे टॉक्सिसिटी को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, नहीं करना चाहिए। एक्सक्यूज मैम। जी सैम। एक्चुअली मैम ये लेट इट बी को मैम सॉल्व कैसे किया जाता है? क्योंकि मैम एक्चुअली मेरे पास है एक्चुअली मेरा आंसर, बट मैं आपका पर्सपेक्टिव सुनना चाहता हूँ। जो चल रहा है चलने दिया जाए, जैसे हो रहा है होने दिया जाएगा, गुजर जाएगा। दो चीजें होती हैं सर, या तो अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए या अच्छा वक्त लेकर आ जाना चाहिए। मैं अच्छे वक्त का इंतजार कर रही थी, एक दिन खत्म हो जाएगा। ये तमाम प्रॉब्लम जो मेरे साथ चल रही थी, डिप्रेशन में गई और बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स लिए, मूड स्विंग्स होते थे, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। आई थॉट के वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। 15 साल, 15 years I struggled almost with those things, challenges. And one day I got up and I realized अब नहीं चलेगा। I cannot let it be. मुझे चेंज करना है, क्योंकि अगर मैंने इसे चलते रहने दिया तो शायद ये अगले 5 साल और 10 साल और ले जाएगा जिंदगी की। We don't have so many years left in life. We don't know about other moment. तो कब तक चलते रहने देंगे? नहीं चलते रहने दे सकते। We have to stand up for ourselves. दूसरों की मदद करने से पहले अपनी मदद करनी जरूरी है। मैंने अपनी मदद की, I look out for help, and ये चलते रहने का सिलसिला मैंने खत्म कर दिया। चीजें अब वैसे चलती हैं जैसे मैं चाहती हूँ। Simple. No person can hamper my peace unless I want. तुम मेरी इंटरनल शांति तब भंग करोगे, इंटरनल पीस तब भंग करोगे जब मैं तुम्हें करने दूंगी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारी जिंदगी में, कुछ भी कहते थे और हमें उसका इम्पैक्ट होता है। किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हम उससे जिंदगी भर उस बर्डन को लेकर चल रहे हैं। अब नहीं लेके चलूं, उन्हें साथ लेकर चलूं, इससे बेहतर है मैं अच्छे मोमेंट साथ लेकर चलूं। मैंने वो वजन उतार दिया अपने कंधों से। I want to be happy. This is my choice. And I'm happy because I want to. Choose your happiness for yourself. क्या आपको खुशी देता है या आप चुनिए, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। I hope I have answered the question, Sayam. Yes, ma'am. Thank you. मैम एक सवाल और था। जी ललिता। जी, जैसे कि हमारे आजकल के टाइम पर हमारे पास बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते, एक सच्चे दोस्त नहीं होते, पर जो होते हैं who are very self-centered, they want to talk to you but they don't want to at that moment, है ना? तो उस मोमेंट में क्या हमें आगे जाके बात कर लेनी चाहिए, या फिर आपको पता है कि वो शख्स अच्छा है पर उसके जो कुछ हरकतें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती या फिर आपको दुख पहुंचाती हैं, तो क्या हमें उस इंसान के साथ आगे भी कंटिन्यू बात करनी चाहिए, दोस्ती रखनी चाहिए या फिर नहीं रखनी चाहिए? आपका जवाब आपके खुद के पास है। आपने अपना जवाब अपने सवाल में ही दे दिया है ललिता। अगर कोई इंसान आपको उस लेवल पे नहीं देखता, आपकी वो हेल्प नहीं कर सकता या आपसे सिर्फ फायदा उठाता है, आपको फायदा पहुंचा नहीं सकता,
ये जरूरी नहीं है कि हर रिलेशन में गिव एंड टेक का ही रिलेशन हो, लेकिन अगर उससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहे हैं तो ये आपको तय करते हैं कि वो नुकसान को आप कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं और कहाँ आपको रोकना है। Identification is important. Ma'am, I want to ask one question, ma'am. Yes, Rishabh. Ma'am, I want to say that, ma'am, जैसे कि आपने कहा कि मैम साइकोलॉजिस्ट आपके हर क्वेश्चन को आंसर नहीं दे सकते, लेकिन हम कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत ही विदाउट टेकिंग फीस दे हेल्प यू लॉट, लाइक आर्ट ऑफ लिविंग और रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन। Yes. They have answer to all your the queries and in art of living they have some religious techniques, some breathing techniques, some meditational exercises which are way better than consulting psychologist. हाँ ऋषभ, हम यहाँ बात करें, मैं भी मेडिटेशन करती हूँ, ठीक है। I also do meditation. I spend time with nature and all those things. लेकिन ये मुझे शांति देते हैं, मेरे सवालों के जवाब नहीं। Ma'am, if you ask questions, then they will give you answers, ma'am, also. हाँ, if they have a panel, they have people who are expert in guiding, then why not? I'm Yes, not ma'am. saying that you cannot find your answers as a religious place. You may. Even you can find your answers in scriptures. आप गीता पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए, बाइबल पढ़िए, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको उसमें मिल जाएंगे। तो जो जवाब आपको मिल रहे हैं, जिनके जवाब आपको वो मिल रहे हैं, आप पा रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल बेटा ऐसे होते हैं लाइफ में जिनका सवाल का जवाब आपको अगर नहीं मिल रहा, तो आप उन सवालों के जवाब के लिए, उन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के लिए, उन डिप्रेशन से फाइट करने के लिए, एंजाइटी मोमेंट से बाहर आने के लिए किसी साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। सिंपल। जैसे मैंने कहा, जैसी बीमारी वैसी दवा। आप जिसकी बात कर रहे हैं, लेट्स से आप वो होम्योपैथिक मान लेते हैं कि आपको फलां चीज के लिए होम्योपैथिक दवाई सूट करती है, लेकिन अगर दूसरी चीज चाहिए, कोई बड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो तो हॉस्पिटल में चलेगा, तो आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है। इट इज लाइक दैट, इट्स अ मिक्स। यस मैम। एक्सक्यूज मैम। यस। एक्चुअली मैम, आज आप ये जो हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, ये मैम जितनी भी चीजें ना, ये सारी चीजें डिपेंड करती है एटीट्यूड पे। यस। तो मैम जैसे एटीट्यूड मैम कैसा रखना चाहिए, क्योंकि मैम जैसा मेरा एटीट्यूड है, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि मैं ना थोड़ा शेरों वाला एटीट्यूड रखता हूँ, ताकि मतलब डरना नहीं है किससे, जो होगा देखी जाएगी। ना तो शेर सबसे ज्यादा भारी है, ना तो लंबा है, उसको खत्म कर सकते हैं शेर को, फिर भी उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो डरता नहीं है, बस शेर जंगल का राजा है। तो मैम कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए? मेरा एटीट्यूड ऐसा है, तो क्या मुझे कुछ चेंज करना चाहिए? स्वयं हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और पॉजिटिव एटीट्यूड हमें कॉन्फिडेंस देता है। आप जिस शेयर पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, दैट शोज दैट यू आर कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छी पहचान है। पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंट रहें अपने बारे में, एंड दैट इज ऑल। आई थिंक ट्रस्ट योरसेल्फ। जैसे आपने कहा, शेर को अपने ऊपर भरोसा रहता है, आपको खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, काबिलियत होना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव रहेंगे तो एवरीथिंग विल बी इजी टू अचीव इंशाल्लाह। और ये सबके लिए है। हम सब, बहुत सारे लोग आज यहाँ पर, 50 लोग हम यहाँ पर हैं, तकरीबन 60 लोगों ने हमें ज्वाइन किया था, 60 से ज्यादा लोगों ने, और हम में से बहुत सारे लोग बोले नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बात समझ में नहीं आई है, या हमारा एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट है। हम सब के अंदर कॉन्फिडेंस है, हम सब पॉजिटिव हो सकते हैं। द ओनली थिंग इज, शायद हमें पता नहीं होता। तो आज हम मिले, हमने बात की इस बारे में कि हम देखें कि हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे एक्सेप्ट करना है चीजों को, और वही हम कर रहे हैं। Excuse me, ma'am. Yes, Rishabh. Ma'am, I want to say one thing, ma'am, to say, ma'am, but not like personal, ma'am. जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैम हमें मैम शेर एक जानवर है, और मैम मतलब मैम मेरी एक पर्सनल सोच ऐसी है कि वी हैव टू बी लाइक ह्यूमंस मैम।
इसी I want to say- सयम ने जो बात कही वो एक एट्रीब्यूट बताया उन्होंने कि मुझे लगता है कि मेरा एट्रीब्यूट जो है वो एक, और यहाँ पे एनिमल की बात नहीं हो रही है, यहाँ बिहेवियर की बात हो रही है कि दुम दबा के भाग जाना, चूहे की तरह दुम दबा के भाग जाना डजंट मीन कि हम किसी को चूहा कह रहे हैं, हम उस एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। शेर जैसा दिलेर होना, तो ये एक एट्रीब्यूट है। तो हम यहाँ पर अपनी एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं कि हम किस चीज से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So, moving towards the last slide. Please know it's okay to not be okay. हम हमेशा सही नहीं हो सकते, हम हमेशा अच्छे नहीं हो सकते, हम हमेशा हेल्दी नहीं रह सकते। It's okay. Ups and downs are part of life. जिंदगी ऐसी है, रोलर कोस्टर की तरह ऐसी है। तो जब हम खुशियों की तरफ आते हैं तो नीचे गम भी आता है, जब अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ते हैं तो फिर एडवर्सिटीज भी आते हैं, और ऐसे ही जिंदगी चलनी है। जब हम खुश होते हैं तो भगवान का शुक्र अदा करना नहीं भूलना, जब एडवर्सिटीज की तरफ जाते हैं तो हम उसे कस के याद करते हैं, लेकिन जब खुशियां आती हैं तो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना। प्रॉब्लम्स आएंगे तो सॉल्यूशंस भी आएंगे। सो इट्स ओके टू नॉट बी ओके। घबराना नहीं, सिंपल एज दैट। आई एम नॉट ओके, दैट्स ओके। ये वक्त है, गुजर जाएगा। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अरे भाई, गिर के ही चलना सीखते हैं, और मंजिल उन्हें ही मिलती है जो चलने का हौसला रखते हैं। तो घबराना नहीं है। इंशाल्लाह आई एम श्योर कि हम सब लोग अपनी इन प्रॉब्लम से बाहर आएंगे एंड हम फेस करेंगे अपनी इन चीजों को, इन प्रॉब्लम्स को। एंड आई वुड एंड अप दिस सेशन विद अ वीडियो। आप प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको इसकी आवाज आएगी। आवाज आ रही है आप लोगों को इसकी? नो मैम। नो मैम। ओके, जसलीन मैम, मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ लिंक। इफ यू कुड जस्ट प्ले दिस वीडियो। श्योर मैम। Yes, I've shared the link. Have you got it? It will just take a moment, ma'am. But we are about to play the video. Sure, And sure. it was indeed a very wonderful session. Actually, आज के टाइम पे यही need of the hour है, because people are dealing with mental stress, mental issues, but they are not able to find a way to come out of it. Very true. So, in addition, I would like to say that gratitude also helps a lot in keeping our thinking right and keeping our attitude right. Very nice. Very rightly said. Positive self-talk, affirmations, gratitude. These are the keys which have helped me a lot personally. So, Yes, Jaspreet ma'am, you are very right. क्योंकि gratitude होना, ये एहसास होना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम हैं तो क्या हम हैं, अगर तुम हो तो क्या तुम हो। अगर सिर्फ I तुम ही love this रहोगे और हम ही dialogue, रहोगे, सच में। राइट, तो हम सब साथ में हैं।
Yes, so we have got the video here. Let me tell you, give you a brief about this lady. This is Arij Syed Safi. She is from Kashmir and a Kashmiri sensation these days. She runs a page on psychology by the name Arijological. You can find her on Instagram and Facebook. And let me tell you, आप सबकी तरह हमारी तरह अरीज एक यंगस्टर है और अरीज भी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज से जूझ रही हैं और लोग ये जो स्टिग्मा फैलाए रहते हैं, ये टबू बनाया हुआ है कि किसी के साथ अपने मेंटल इलनेस को शेयर नहीं करना। अरीज ने वो सोसाइटी की उन कुरीतियों को, उन जंजीरों को तोड़ के आगे आने का फैसला किया और सबके साथ शेयर किया कि शी इज अ पेशेंट ऑफ मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और साइकोलॉजिकल अवेयरनेस कैंपेन चला रही हैं और अपनी पहली वीडियो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है जो उन्होंने कल ही फिनिश किया था परसों, और शी शेयर के वो ये इस मंच पे शेयर करना चाहती हैं, आप सबके साथ शेयर करना चाहती हैं और एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहती हैं कि साइकोलॉजिकल इलनेस क्या है, मेंटल इलनेस क्या है और हमें कैसे डील करना है इससे। यस जसप्रीत मैम, प्लीज प्ले दिस। हेलो, हाय। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा बिहेवियर जैसे मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है। ये तो रहा है, मैं तो क्या करूँ? अच्छा नहीं यार, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। अच्छा, यू कैन हेल्प। क्या लग रहा है तुम्हें? मामूली सा डिप्रेशन। ओके ओके, ठीक है ओके। क्या होता है? ये मेरी फ्रेंड थी। नहीं, साइकोलॉजी का नाम तो नहीं है, लेकिन she said she can help. हाँ यार, सैड में मैं तो क्या हूँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। हाँ, पहले सिर्फ एंजाइटी थी, अब पैनिक अटैक है। पहले सिर्फ फ्रस्ट्रेशन थी, अब एंगर मैनेजमेंट इश्यूज है। क्या करूँ अब? पर रोज तो है कि करूँ क्या? What should I do? It has been 2 months. I've been following her instruction myself. Nothing is helping. क्या? डॉक्टर? मैंने भी कही थी डॉक्टर के पास जाऊंगी तो 4 लोग 4 बातें करेंगे। डॉक्टर तो पागल है, 40 साल का साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही है। आप भी अगर मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊंगी तो आपकी गलती है, सब कहते हैं यार। लेकिन एक चीज है, पता है मम्मा मुझसे कि उनकी एक फ्रेंड है, वो साइकोलॉजिस्ट है, she can help। मुझे पता है। हम गए उनके पास और वो तो हर साइकोलॉजी पढ़ने वाला काउंसलर नहीं मिला। मैंने कहा ऐसा क्या? कहा हाँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ। हाँ, मेरा भी बहुत रिएक्शन था, हर साइकोलॉजी वाला काउंसलर नहीं होता, जानना होगा। हाँ, ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? आप जाके खुद भी पूछ सकते हैं, रहती हूँ अगली गली छोड़ के आपकी गली। वो कह रही है मुझे क्या शुरू में, अब मैंने कहा
नहीं, मैं अभी भी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं, सोल्यूशन को बोला तो सारा क्वेश्चन क्या पता नहीं। आप मुझे बता कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँ या मैं काउंसलर के पास जाऊँ? हाँ, दोनों पलट में ऐसे ना देखिए मुझे, ऐसा मुझे उन्होंने कहा था, मामा की जो फ्रेंड है। मैम आपका वॉइस, ये ऑडियो का वॉइस नहीं आ रहा है बिल्कुल। Jasleen ma'am, could you unmute? Yes, ma'am. We are just looking into it. Paramjeet Singh, I think he has to. Pawan do waktas, kokrekati waktas. नेक्स्ट टाइम जब लगे ना कि आप बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं और साइलेंट काउंसलर बन चुके हैं, तो मेहरबानी करके उस एडवाइस को खुद तक ही रखें। और जब नेक्स्ट टाइम ऐसा लगे तो खुद को याद दिलाइए, मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत आप काउंसलिंग करने के लिए तभी एलिजिबल होते हैं, एटलीस्ट अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है साइकोलॉजी में। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, दो ही बातें सीखी तो दो ही लोगों को सिखाइए। थैंक यू। हेलो। Yes, so that was about the stigma, the taboo that we all are dealing with day in and day out. Arij is one of such people who has been dealing with this problem since many years now. And then one day she decided that she needs to consult a psychologist. She needs an expert help. And अब वो अवेयरनेस कैंपेन चला रही हैं और शायद कल को हम में से ये कोई एक आगे निकल कर आगे आए और इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन चलाए। So with these words I am leaving you on World Mental Health Day कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास वाले खुश रहेंगे। My mental health is important and so are yours. तो फिर कभी किसी और वक्त में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मैं एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ RCD का एंड खासतौर पे जसप्रीत मैम का फॉर इनवाइटिंग मी टू हैव दिस सेशन and giving me this opportunity to share my thoughts on the topic on World Mental Health Day. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It was great experience कि आप इतना अच्छे तरीके से बच्चों के साथ आपने live example share किया। When we start sharing our live examples, तो बच्चा ये अपने आप पे realize करता है कि हाँ अगर मैम भी निकल सकते हैं तो मैं भी निकल सकता हूँ, क्योंकि वो कि हमारे टीचर्स अगर बोले 2 + 2 = 5 अगर बाई चांस, तो पेरेंट्स कोशिश भी करें ना कि नहीं 2 + 2 = 4, मतलब नहीं मेरी मैम ने ऐसा सिखाया तो 2 + 2 = 5 ओनली। तो
ये चीजें बहुत मैटर करती है कि अगर एक टीचर बताए कि हाँ देयर इज सम प्रॉब्लम वी नीड टू डिस्कस। हाँ, समटाइम्स इट हैपन कि आपको राइट लिसनर नहीं मिलता, बट चलो ठीक है, आपको बेस्ट लिसनर नहीं मिला, पर क्या कभी आपने कोशिश की बेस्ट लिसनर बनने की? वाओ, है ना, हम इसमें भी कोशिश करें, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हमें कि हाँ मैम अपनी फीलिंग्स राइट टाइम पे किसको शो नहीं कर पाते हम, है ना, तो क्या आप अपनी फीलिंग्स अपने आप को शो कर पाते हो? वी एक्सपेक्ट हाँ तो जब स्प्रीत मुझे हर चीज समझे, क्या मैं अपने आप को समझती हूँ? ये भी बहुत मैटर करता है। सो इफ वी स्टार्ट, सबसे पहले हम किसी को ढूंढने से पहले अगर शीशे के सामने, वॉशरूम में कोई भी नहीं होता, तो वॉशरूम ऐसी जगह है जहाँ पे आपको फुल प्राइवेसी मिलती है, तो अगर आप अपने शीशे मिरर के आगे अपना बात करना स्टार्ट कर दें कि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, तो भी आई थिंक तो कोई, क्योंकि द डे आई विल एक्सपेक्ट, मतलब मैं ये मान लूं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो भी बहुत, अगर कोई चीज में सामने वाला बंदा बोलेगा कि तेरे में ईगो है, मैं नहीं बर्दाश्त करूँ, बट द डे मुझ में आ जाए कि हाँ यार मेरे में ईगो इश्यूज है, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फाइंड अ सोल्यूशन। यस, वेरी ट्रू। सोल्यूशंस अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे भी तो आप देखेंगे कि हाँ वो आपके अंदर से ही सोल्यूशन निकालते हैं, है ना। तो ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट तक हम पहले तो पहुंचे ना, एक्सट्रीम पॉइंट में पहुंच के वी डेफिनेटली नीड समबडीज हेल्प, पर अगर हम छोटे छोटे तरीके से रोज अपने आप से बात करना शुरू कर दें, रोज अपने लिए एम बनाना स्टार्ट कर दें, तो मे बी ये चीजें सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, जब थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड वी 100% नीड समबडी, बट फर्स्ट स्टेप पे लेट्स स्टार्ट कि हम खुद से बात करना स्टार्ट कर दें। और जरूरी नहीं है कि जैसे संयम ने जतिन ने बोला कि हाँ कि ऋषभ ने कि हम किसी के सामने बात करते, अगर हम आपस में बात करते, खुद से बात करते तो लोग कहते हैं कि पागल है ना, तो लोगों के सामने बात ही नहीं करनी, वॉशरूम में कोई नहीं खड़काएगा तो किससे बात कर रहा है। अब हम लोगों की भी हैबिट बन गई है। अब डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन एक बहुत बड़ा मेरे को दिखता है, दैट इज सोशल मीडिया आल्सो। यस, है ना, हम वॉशरूम भी जाते हैं तब भी फोन लेके जाते हैं, है ना। अगर हम इन चीजों पे फिर हम देखते हैं यार इसने तो बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, इसने तो बहुत फोटोज अच्छी डाली है, तो ये चीजें भी अगर हम थोड़ा सा कम कर दें तो मेरे अकॉर्डिंग हम दूसरों की लाइफ में झांकना कम करें तो डिप्रेशन थोड़ा कम हो सकता है। वेरी ट्रू, वेल सेड। और मेंटल इलनेस के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं और बहुत सारी तरीके की हो सकती है। आइडेंटिफाई करना और डिस्कस करना 1 घंटे 2 घंटे के सेशन में एक बहुत बड़ा टास्क है। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दोज हिडन पॉइंट्स आल्सो लाइक सोशल मीडिया। आप डिप्रेशन, एंजाइटी इससे भी जूझते हैं, कौन कहाँ घूमने गया, किस रेस्टोरेंट में खाना खाया, मैं क्यों नहीं जा सकता, ऐसे ड्रेस मैं क्यों नहीं पहन सकता, ये सारी चीजें भी एक्यूमुलेट होके हमारी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो ये हमें जज करना है कि हमने किन चीजों को अपनी जिंदगी को इम्पैक्ट करने देना है। वेरी वेल सेड जसलीन मैम, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट टू अस। Thank you so much, ma'am. And I have shared one feedback form with you all. तो आपके प्लीज सबके फीडबैक्स बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो नीड, हम लोग ये सोचते हैं कि फीडबैक मीन्स कि हम अपने आप को और इम्प्रूव कैसे करें, एंड वेरी लर्न करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मैम है या मैं हूँ, हम लोगों के लिए लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लर्न किस तरीके से होगा, व्हेन यू विल गिव अस फीडबैक, हाँ मैम ये थोड़ा सा टॉपिक और दे दो या कुछ ऐसा। तो इफ यू नीड, हम मैम को फिर रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपका कोई ऐसा स्टूडेंट्स आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक है तो मैम और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हम रिक्वेस्ट मैम कि आप किसी भी दिन प्लीज हमें थोड़ा सा समय और दीजिए। श्योर, इट विल बी अ प्लेजर। मैं अपने सेंटर में तो इस तरह के सेशंस अक्सर ही ले लिया करती थी, बट प्रोफेशनली फर्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस है
कि मैं आपके साथ शुरुआत हुई है तो आगे तो जाना ही जाना है फॉर श्योर इससे इंशाल्लाह. So yes, I am very happy about it that we have we are together in this initiative in my first step towards my journey, unending journey I would say, and we are together thanks to RCAT and you. So from RCAT, thank you ma'am, and all the very best. Thank you so much. Thank you so much. And I would like to have the feedback reviews also to improve Sure, myself ma'am, because this was definitely I my will first forward. time. Yeah, definitely I will forward. Thank you so So much. students, ma'am is waiting for your feedbacks. So please, I request you all कि आप सब अपने feedbacks इस feedback form पे देना. ठीक है जी? So let's end this. Lovely. Thank you so much. Thank Bye-bye. you so much. Okay, ma'am.